So today we are going to do with the osmosis and diffusion. And there is also a colligative property. We are going to talk about the osmotic pressure. So before that we need to understand what is osmosis and what is diffusion. और ये दोनों ही solution का ability है. तो अब मुझे आप बताओगे कि solutions का two components क्या होता है? What are the two components of solution? Whenever somebody is going to and solvent. So solutions का जो two components होता है, one is solute and another one is solvent. And जो भी less amount में होता है वो आपका solute होता है और जो आपका more amount में होता है वो solvent. तो जब भी आपसे कोई somebody is going to ask you what are the two component of solution, और हमने ये भी बताया था solution एक mixture है because उसमें no chemical reaction, कोई भी chemical reaction solute और solvent में नहीं होती. जब आप बोलोगे मैम this is a solute and this is a solvent, these two component will make a solution. Is it clear? Whatever is in the less amount solute and whatever is in the more amount, जो भी आपका more amount में होगा वो आपका solvent होगा. Is it clear or not? और solution का जब भी हम बोलते हैं कि solution का two properties है, one is osmosis है ना and one is diffusion. And in last class we talk about जब भी हम osmosis को define करते हैं तो osmosis में सबसे बड़ा बात है, osmosis में solvent का movement होता है. Solvent can move. Is it clear? Can it clear? Through a semi-permeable membrane. You need to require a semi-permeable membrane. क्योंकि जो solvent होता है वो usually liquids होता है, तो liquid can easily move through a semi-permeable membrane. और अगर हम diffusion का बात करेंगे तो diffusion में कौन move करता है? Solute move करता है through. It is not a through a semi because there is no semi-permeable membrane. Solute move from its high concentration to its low concentration. Is it clear or not? Always there is a movement of solute from its high concentration. और osmosis में solvent का movement होता है through a semi-permeable membrane where the concentration of the solvent is high, तो वो high to low move करता है. Is it clear? Can it clear? And whenever we are talking about concentration, बहुत students को ये concentration ही नहीं समझ आता. जब भी हम concentration of solution का बात करते हैं, whenever we are talking about the concentration, it is always in terms of solute. तो हम solute के वे में बात करते हैं और हमने आपको बताया है कि how we can express the concentration, जिसमें हम molarity की बात करते हैं, molarity, normality and molality and strength. So these are the different ways कि जब हम concentration of solution को express करते हैं in terms of the solute. Whenever you have any solution, solute is a very important component. जब भी आपके परसेंट सोल्यूशन आएंगे, जब भी आपके परसेंट सोल्यूशन आते हैं तो उसमें भी हम बोलते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के बेटा, दोनों को मिला के वी नीड टू रिक्वायर दैट विल मेक अ सोल्यूशन. और उनका जो अमाउंट होना चाहिए वो 100 क्रॉस नहीं करना चाहिए. इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? और ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट मूव करता है. दैट यू नीड टू ऑलवेज अंडरस्टैंड. For example, हम अगर if you have a definition of osmosis in terms of solution, तो what do you say? There is a movement of solvent from low concentration of solution, to high concentration of solution. अब ये डेफिनेशन कैसे डिफिकल्ट लगता है बिकॉज मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ द सल्यूट. फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास इफ यू हैव अ 10% शुगर सोल्यूशन है ना एंड समबडी हैज 20% शुगर सोल्यूशन. इज इट क्लियर? तो जब भी हम परसेंट के बाद 10% मीन्स इफ इट हैज 10 ग्राम शुगर और वो कितने पानी में डिजॉल्व है, दैट इज अ 90 ml वाटर. तो दोनों को मिला के आपका 100 ml होना चाहिए. जिसमें 20% शुगर होगा तो मीन्स 20 ग्राम शुगर है तो उसमें वाटर कितना है, दैट कुड बी हैव 80 ml वाटर. दोनों को मिला के 100 ml होना चाहिए. और बेटा मैंने बोला है कि वेन एवर यू हैव अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन
तो लिक्विड मूव करेगा, तो लिक्विड कहाँ पर मूव करेगा? जहाँ पर लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा है। तो इट मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आप whenever you have some दाल, जब आपकी मम्मी बहुत नमक डालती है, आप बोलते हैं ना मम्मी इट इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, आज बहुत ज़्यादा दाल में नमक है। तो कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ द सल्यूट, ये आपको एक्सप्रेस करना है। और जो सॉल्वेंट होता है वो तो एक एडजस्टर होता है, जब भी परसेंट आएंगे तो दोनों को मिला के 100 होना चाहिए। तो जहाँ पर भी सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा है तो वो हाई टू लो मूव करता है सॉल्वेंट। बट इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन, तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन लेस होगा तो इट मीन्स सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो इसलिए 10 से आपका 20 की तरफ आपका सॉल्वेंट मूव करेगा इफ देयर इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? जब भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा तो सॉल्वेंट का हमारा मूवमेंट होता है। और नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि जब भी ऑस्मोसिस का बात करते हैं तो ऑस्मोसिस इज एक एंडोऑस्मोसिस होता है, एंडोऑस्मोसिस, एंड देयर इज अ एक्सोऑस्मोसिस। सो एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ बाहर से अंदर आता है, व्हेनेवर समथिंग इज मूविंग फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? एंड एक्सोऑस्मोसिस मीन्स एक्सटर्नल, व्हेन समथिंग इज मूविंग फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और आपके जो सॉल्यूशंस है, आपको ऑस्मोसिस को इफ़ यू नीड टू अंडरस्टैंड, तो सॉल्यूशंस आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, एंड आपका वन इज मोर हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। मैंने फिर बोला है कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ सल्यूट। हाइपरटोनिक का मतलब होता है जैसे होता है ना हाइपरटेंशन, हाई बीपी, तो इट मीन्स व्हेन द सोल्यूट अमाउंट इज वेरी वेरी हाई देन द सॉल्वेंट, वो आपके हाइपरटोनिक होते हैं। एंड नहीं मैंने बोला ना, जब आप वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे आपके बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सिरप्स होते हैं तो वो हाइपर है। जैसे आप यू आर हैविंग द जलेबी, तो जलेबी में जो वो उसका जो वो शुगर कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो हाइपर है, मीन्स वाटर इज लेस एंड शुगर इज मोर। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? whenever we are explaining solution we need to make something as a base, वो हम सल्यूट को बेस लेते हैं। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? मीन्स when in a water the concentration of the solute is very very high, so it is a hypertonic. Hypo means, बिकॉज अभी हम आपको कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा होता है, मैंने फिर बोला है दैट यू डोंट कोरिलेट विद दिस कि आप ये कहोगे कि मैम सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। वो सोल्यूशन का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है। अगर हम आपको बोलते हैं कि वन इज़ 10% शुगर सोल्यूशन एंड वन इज़ 40% शुगर सोल्यूशन, तो कौन सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? ये कॉन्सेंट्रेटेड है। इट मीन्स अब यू आर कंपेयर करेंगे, आप बोलोगे मैम इसमें शुगर इज़ वेरी वेरी हाई और यहाँ पर शुगर इज़ वेरी लेस। इज इट क्लियर? मैंने फिर बोला सॉल्वेंट एक एडजस्टर है, आप कंपेयर करोगे इनसाइड और आउटसाइड कंडीशंस को। इज इट क्लियर? हाइपर का मतलब होता है कि जब भी आपका सल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा, तो दिस इज़ अ हाइपरटोनिक, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो। हाइपरटोनिक वो होगा जब आपका जिसमें सॉल्वेंट इज मोर देन सॉल्यूट। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? इफ somebody is going to ask you this 10% वाला is a hypertonic, is it clear कि नहीं clear? because whenever you are going to prepare, आप 10 ग्राम शुगर लेंगे तो how much water you are going to put? 90 ml water। तो बेटा this you can compare with respect to the solute or solvent। means solute concentration हमेशा आप solute पे बेस होती है। अगर आप बोलोगे कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि when the solute is less and the water is more, तो वो आपका hypertonic है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और आइसोटोनिक वो होगा जब आपको सल्यूट और सॉल्वेंट आप कहोगे मैम इक्वल है। इज इट क्लियर? आई विल टेक वन एग्जांपल देन यू अंडरस्टैंड क्लियरली। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ रेजिन, यू नो अबाउट रेजिन जिसको हम किशमिश बोलते हैं। अगर टीचर इज गोइंग टू आस्क यू इफ यू हैव अ रेजिन एंड यू कैन पुट इट दैट रेजिन इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन,
हाइपोटोनिक सोल्यूशन. तो वेयर इज द मूवमेंट, बिकॉज जो रेजिन का जो स्किन है इट विल एक्ट लाइक अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो अभी आपको वाटर का मूवमेंट करना है और आपने उसको किस में डिप किया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन. तो इट मीन्स आपका सॉल्वेंट बाहर ज़्यादा है सोल्यूट से, नहीं आया कि नहीं आया. मतलब वाटर कंडीशन बहुत ज़्यादा है. हाइपो का मतलब ये होता है, देखो ऐसा नहीं है कि मीन्स दिट इज़ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. वाटर इज मोर देन सोल्यूट या सॉल्वेंट इज मोर देन सोल्यूट. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर. तो आपको कंडीशंस देखना पड़ेगा कि पानी कहाँ पर ज़्यादा है, वेयर द वाटर इज मोर. बिकॉज हाँ, बिकॉज इट मीन्स यस, इसमें जो पानी है वो बाहर से बेटा अंदर जाएगा. बिकॉज द रीजन बीइंग आपका कंडीशंस क्या है, हाइपोटोनिक मीन्स सॉल्वेंट इज मोर देन द सोल्यूट, तो वाटर इज मूव इनसाइड और आपका वो रेजिन जो होगा वो स्वेल कर जाएगा बेटा. इज इट क्लियर. सो दिस इज कॉल्ड एज द एंडोऑस्मोसिस. क्लियर. अगर आपका सेम रेजिन इफ somebody is going to ask you, if you take out that resin and you can put it in a hypertonic. Now I'll just have that. Now I will have a hypertonic. Hypertonic का मतलब it is a very concentrated, उसमें बहुत ज़्यादा solute है. तो it means outside condition में solute is more than solvent. इज इट क्लियर. तो अगर आपका सेम रेजिन जो स्वेल अप रेजिन है तो इसका मतलब आपको वाटर कंडीशंस देखना है. तो मीन्स इट इज़ वेरी डायल्यूटेड इनसाइड, कि बाहर उसका अंदर बहुत पानी है रेजिन के, तो वाटर विल मूव आउटसाइड. तो पानी कहाँ से जाएगा, अंदर से बाहर. तो इसको हम बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर. थोड़ा रेजिन थोड़ा सा श्रिंक होगा. इज इट क्लियर. अगर वो बोलते हैं ये सेम रेजिन जो आपने हाइपोटोनिक में डाला था, अगर आप इसको आइसोटोनिक में डालते हैं तो व्हाट विल हैपन, इफ़ यू कैन पुट इट इन आइसोटोनिक, तो आपका जो स्वेल रेजिन है अगर आप उसको आइसोटोनिक में डालते हैं तो आपको कंडीशंस देखना है. तो आप बोलोगे मैम पानी बाहर भी बहुत ज़्यादा है और अंदर भी इक्वल है. वाटर कौन से मीन्स इक्विलिब्रियम, देयर इज इक्विलिब्रियम. तो इट मीन्स आप बोलोगे मैम सोल्यूट और सॉल्वेंट इज काइंड ऑफ इक्वल इनसाइड और आउटसाइड, है ना. तो देयर इज अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम में सम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि रिएक्शन होता है कि नहीं होता. होता है. जितना पानी अंदर से बाहर आएगा उतना पानी बाहर से अंदर जाएगा. मीन्स द रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस इज इक्वल टू एक्सोऑस्मोसिस. इज इट क्लियर कैन क्लियर. इज इट क्लियर और नॉट. तो ऑस्मोसिस में द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दिस. जब ऑस्मोसिस में बेसिकली लिक्विड मूव करता है, लिक्विड मूव करता है बेटा. देयर इज अ, बिकॉज लिक्विड का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है. लिक्विड का मूवमेंट होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इज इट क्लियर कैन यू क्लियर. Now the second question, live examples है. Whenever you have watermelon, is it clear? या whenever you have a salad, आपका जो वेजीज होता है, आपका जो वेजिटेबल्स होता है, उसमें हम कहते हैं ना 80 to 90% वाटर होता है. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर. अगर आप उस सैलेड में, इफ़ यू हैव अ सैलेड एंड यू कैन पोर सॉल्ट इन इट, अगर आप उसके ऊपर सॉल्ट डालते हैं बेटा, तो आप ये देखो कि उसका बाहर का कंडीशन क्या होता है, हाइपरटोनिक, क्योंकि सोल्यूट इज मोर आउटसाइड. तो पानी क्या होता है, अंदर से बाहर होता है. इसलिए बेटा आपकी प्लेट में पूरा पानी आ जाता है. तो इसको एक्स ऑस्मोसिस बोलते हैं. एक्स ऑस्मोसिस. जब आप कोई चीज़ मैरिनेट करते हैं ना, तो आप उसमें सॉल्ट डालते हैं, है ना, यू आर पुटिंग, तो वो एक्स ऑस्मोसिस होता है. जो भी पानी उनके अंदर होता है ना, इट विल बी आउट. इज इट क्लियर. मैंने फिर बोला है, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली विद द मूवमेंट ऑफ वाटर. जहाँ पर भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, वो हाई टू लो मूव करता है. और इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज इन टर्म ऑफ सोल्यूट, तो वो लो टू हाई मूव करता है इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन. इज इट क्लियर और नॉट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू प्रूव इट. जो ऑस्मोसिस है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा. इज इट क्लियर. एंड व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमने आपको बताया था, विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट, है ना, डिजॉल्व इन द सोल्यूशन. जो सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, वो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि आपका कितना सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व है. तो इस ऑस्मोसिस पे नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर. इज इट क्लियर.
और ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सल्यूट विच इज डिजॉल्व्ड इन द सोल्यूशन. इज इट क्लियर? बट बिफोर दैट आई नीड टू explain to you what is osmotic pressure. So do you have any idea what is osmotic pressure? Osmotic pressure क्या होता है? Some teacher is going to ask you, देखो मैंने फिर बोला है, जब भी ऑस्मोसिस होगा लिक्विड मूव करेगा जहाँ पर लिक्विड का सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है. इज इट क्लियर? जहाँ पर भी पानी का अमाउंट ज़्यादा है वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है, तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं. और देर मस्ट बी सम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? अभी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को अंडरस्टैंड करना है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल. यू नो अबाउट सी वाटर. आपको पता है कि जो सी वाटर होता है, तो सी वाटर इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें बहुत सारा सॉल्ट डिजॉल्व होता है. इट इज़ अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. आपको मालूम है ना, जो भी आपका सी वाटर होता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक, नाउ आई हैव अ 2 चैम्बर. इज इट क्लियर? दिस इज आई एम हैविंग अ पार्टीशन. बहुत सिंपल सा बात है. दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सो हेयर आई हैव द सॉल्वेंट. मैंने यहाँ पर आपका प्योर वाटर लिया, सॉल्वेंट. इज इट क्लियर? एंड हेयर आई टुक अ सोल्यूशन. आप ऐसे सोचोगे अपना सोल्यूशन है, और सोल्यूशन मीन्स वेयर द सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बोथ आर प्रेजेंट. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? बट यहाँ पर आपका प्योर सॉल्वेंट है. क्लियर? कैन यू क्लियर? एंड यू हैव अ पिस्टन ऑल्सो. ये आपका पिस्टन है, ठीक है. दीज आर द पिस्टन्स. इज इट क्लियर? एंड देर इज अ काइंड ऑफ वाटर लेवल. नाउ माई क्वेश्चंस टू यू. दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. You can just understand this is a semi-permeable membrane. In between these two solution, it has a semi-permeable membrane. Is it clear? Can you clear? तो अब आप मुझे बताओगे, जब भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी तो आपका सॉल्वेंट मूव करेगा, जहाँ पर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई टू लो मूव करेगा. सो दिस साइड इज ए साइड एंड दिस साइड इज बी साइड. तो वाटर का मूवमेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से होगा? ए टू बी होगा या बी टू ए होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? जब भी पानी मूव करेगा, एक साइड पे हमने प्योर सॉल्वेंट रखा है और एक साइड पे हमने सोल्यूशन रखा है. सोल्यूशन इज अ सी वाटर, यू कैन से. इज इट क्लियर? आप ये भी कह सकते हो चलो ये सोल्यूशन एक सी वाटर है ना. तो इस मीन्स पानी का मात्रा कहाँ पर ज़्यादा है? वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर इज हाई. बिकॉज ऑस्मोसिस में फिर बोला है कि वाटर मूव करता है. सो वेयर द मूवमेंट ऑफ द वाटर विल टेक्स प्लेस? फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए? यस, द मूवमेंट ऑफ द वाटर विल टेक्स प्लेस फ्रॉम द ए टू बी. बिकॉज आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो प्योर वाटर है एंड देयर द, बिकॉज यहाँ पर सोल्यूशन है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सो द मूवमेंट ऑफ द वाटर विल टेक्स प्लेस फ्रॉम द हाई टू लो. हमेशा जहाँ पर भी वाटर का अमाउंट हाई है, कोई भी चीज़ हाई टू लो मूव करती है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम दिस ए टू बी. तो पानी यहाँ पर मूव करेगा. इज इट क्लियर? वाटर इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन. तो ऑटोमेटिकली ये पिस्टन जो होगा इट विल मूव अप. ये इसका जो है पिस्टन विल, बिकॉज इट विल हैव अ प्रेशर ना, इसका वॉल्यूम नीचे आता जाएगा और इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इस साइड का, बी साइड का वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट? नाउ द क्वेश्चन इज दिस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है विच यू कैन एक्सर्ट ऑन द सोल्यूशन साइड. अगर आप कहोगे मैम पानी हमेशा हाई टू लो है बिकॉज ए साइड पे प्योर सॉल्वेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, दे आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो. जब आपके फ्लड्स आते हैं, कहते हैं ना पानी हमेशा हाई टू लो मूव करता है. बट अगर आपको फ्लड्स को रोकना है, अगर आप कहते हो ना कभी सुनामी आता है, और अगर आपको किसी फ्लड्स को रोकना है, तो आप कहाँ पर प्रेशर लगाते हो? यू आर गोइंग टू अप्लाई अ प्रेशर ऑन द ऑपोजिट साइड. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो आप ऑपोजिट साइड पे प्रेशर, इस मेम्ब्रेन पे ऑपोजिट साइड पे यू आर अप्लाइंग अ प्रेशर. आप इतना प्रेशर लगाओगे सो दैट जो पानी का मूवमेंट हाई टू लो हो रहा है ना, ए टू बी, इट विल गेट स्टॉप्ड. तो आप वो एक क्वेश्चन आता है, दिस इज द मिनिमम प्रेशर. आप कितना मिनिमम प्रेशर लगाते हो? पी नॉट. सो एज टू stop the movement of water. So as to stop the movement of water from A to B. From A to B. तो आप कितना प्रेशर लगाते हो? आप कितना प्रेशर लगाते हो
so as to stop the movement of water from A to B. तो आपको इतना प्रेशर लगाना है कि आपका पानी का मूवमेंट बंद हो जाए. तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर वाटर बहुत ज़्यादा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वाटर का जो मूवमेंट है हाई टू लो उसको आपको रोकना है बेटा. सो ऑस्मोटिक प्रेशर में यू आर गोइंग टू अप्लाई अ प्रेशर ऑन द ऑपोजिट साइड, मीन्स ऑन द सोल्यूशन साइड. आप सोल्यूशन साइड पे उस मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे और वो ऑपोजिट प्रेशर होगा, सो एज टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन. तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर. आप कितना मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सोल्यूशन साइड पे, बिकॉज वो सोल्यूशन साइड पे, सो एज टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन. तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर. और अगर आप उस ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर जो आप अप्लाई करेंगे इफ़ इट इज़ मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपको पता क्या होता है, आप रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं. जैसे कहते हैं ना उल्टी गंगा बहती है. अदरवाइज आप कहते हो कि मैम पानी तो हाई टू लो मूव करता है. अगर आप उसकी ऑपोजिट साइड पे इतना प्रेशर लगाते हो कि पानी का बहना रुक जाता है, अगर आप उस लेवल से और थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हो तो पानी का जो बहाव होता है वो उल्टा हो जाता है, वो अब पानी सोल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड मूव करता है. तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. मैंने बोला ना ऑस्मोसिस हमेशा प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन साइड होगा, जहाँ पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा. और व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है विच कैन स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन. तो आप कितना मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट करते हो सोल्यूशन की साइड पे. कहता है इट इज़ द व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? इट इज़ द मिनिमम प्रेशर. मिनिमम होना चाहिए. आप कितना कम से कम प्रेशर एक्सर्ट करते हो. It is the minimum pressure which can be exerted, which can be exerted. Is it clear? That is the important. Which can be exerted from the solution side, from the solution side, so as to stop the movement, so as to stop the movement of water, so as to stop the movement of water or any liquid. Is it clear? Can it clear? From pure solvent to the solution side. Is it clear? जो पानी आपका प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड मूव कर रहा है बेटा, उसका मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा. एंड द सेकेंड थिंग, इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई अ प्रेशर, इफ वी आर applying a pressure more than the osmotic pressure, more than the osmotic pressure. Is it clear? osmotic pressure को हम P नोट से डिनोट करते हैं. if we are going to apply external pressure more than the osmotic pressure, then reverse osmosis will occur. reverse मतलब कहते हैं ना उल्टी गंगा बहना बेटा, कि रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि वाटर मूवमेंट अब कहाँ से होगा, सोल्यूशन टू सोल्यूट साइड मूव करेगा. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? वाटर मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम सोल्यूशन टू सोल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? अदरवाइज कोई भी चीज़ हाई टू लो मूव करती है. अब यहाँ पर जहाँ पर वाटर का अमाउंट कम है, कम से ज़्यादा की तरफ मूव करेगी, बिकॉज यू आर अप्लाइंग अ प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक. ऑस्मोटिक प्रेशर तो एक मिनिमम प्रेशर होता है जिससे आप पानी को जो हाई टू लो मूव करता है वो रुक जाए बेटा. और अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस विल हैपन. और आपको इफ़ यू अंडरस्टैंड अबाउट RO, आपके घर में RO है ना, वाटर प्यूरीफायर, जो आपका वाटर प्यूरीफायर होता है, कभी आपने कभी सुना उसका फंक्शनिंग कैसे होता है? RO मीन्स इट विल ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? उसमें भी एक मेम्ब्रेन होता है. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? उसमें एक मेम्ब्रेन होता है, उसमें एक पंप होता है. जो पंप होता है ना वो एक प्रेशर जनरेट करता है मेम्ब्रेन पे. पंप जनरेट प्रेशर ऑन द मेम्ब्रेन. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? ऑन द मेम्ब्रेन. क्लियर और नॉट?
ठीक है। और आपका कभी भी देखना आपके आरओ में एक टैंक होता है, इज इट क्लियर, यू हैव आरओ हैज अ टैंक, उसमें आपका प्योर वाटर होता है, इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर। उसमें कुछ कनेक्शंस होते हैं, जो आपका वाटर टैंक होता है ना आपके घर में, वाटर टैंक जो आपका जो भी आपका इम्प्योर वाटर होता है ऊपर, है ना, आपका जो पानी का टैंकी होता है उसमें इम्प्योर वाटर होता है ना, तो इट विल एक्ट लाइक अ सोल्यूशन। तो आपने कभी देखना आपका ऐसे करके कनेक्शंस होते हैं, आपका कभी देखना यू हैव दिस, तो आपका जो प्योर वाटर होता है, जो आपका आरओ में एक प्योर वाटर टैंक होता है, जैसे किसी का 10 लीटर का आरओ है, और एक कनेक्शन उसका टैप से टैंक के साथ कनेक्टेड होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी मेम्ब्रेन होती है और वो पंप होता है। तो वो पंप कैसे काम करता है, वो पंप जैसे एक मेम्ब्रेन होती है, तो दिस इज़ अ वाटर टैंक, है ना, जिसमें सोल्यूशन है, जो आपका इम्प्योर वाटर है, आपका ऊपर आपका फ्लोर के ऊपर पानी का टैंकी होता है ना, तो वो क्या करता है, पंप क्या करता है, इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द ऑपोजिट साइड। तो वो ऑपोजिट साइड पे प्रेशर एक्सर्ट करता है वो मेम्ब्रेन के ऊपर। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर। अदरवाइज पानी कहाँ से जाना चाहिए, प्योर टू हाई टू लो मूव करना चाहिए ना, ठीक है। तो वो इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द मेम्ब्रेन ऑन द ऑपोजिट साइड, जहाँ पर आपका वाटर टैंक से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर। तो उससे क्या होता है कि इफ दैट पंप विल अप्लाई अ प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, तो आपका जो वाटर का मूवमेंट होता है ना वो उल्टा हो जाता है बेटा, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। जो आपका पानी का टैंकी है ना बेटा, वहाँ से पानी आपके जो आपका आरओ का टैंक है ना उसमें मूव करना शुरू कर देता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यू हर्ड अबाउट द आरओ बट वी डोंट नो अबाउट हाउ द आरओ इज फंक्शनिंग। तो आरओ में एक आपका मेम्ब्रेन होता है और एक आपका पंप होता है, और अगर ये पंप में प्रॉब्लम होता है तो फिर आपका रिवर्स मूवमेंट ऑफ मतलब प्यूरिफिकेशन स्टॉप हो जाता है ना। और अगर आपका मेम्ब्रेन की क्लॉगिंग हो जाए, क्लॉगिंग मतलब अगर मेम्ब्रेन के पोर्स खराब, तभी तो बोलते हैं 1-2 साल के बाद उसका मेम्ब्रेन चेंज करवाना चाहिए। इज इट क्लियर, तभी वाटर का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज इन द आरओ, दैट द रिवर्स ऑस्मोसिस विल अकर। और अगर आप बोलेंगे कि मैम ये और कहाँ पर इसका एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज इन द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। आपने कभी देखा कि हम सी वाटर से व्हाट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सी वाटर, हम सी वाटर से क्या करते हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट द सॉल्ट। हमें नमक मिलता है ना सी के वाटर से, तो वो कैसे मिलता है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस से होता है। दैट विल ऑल्सो हैपन बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर। अगर आप बोलोगे कि मैम हाउ दिस कुड हैपन, तो देखो एक फिर अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर एक जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो अगर ये हमारा सी वाटर है, दिस इज अ सी वाटर, इज इट क्लियर, है ना, एंड दिस इज अ प्योर वाटर, क्लियर कैन यू क्लियर, प्योर वाटर, एंड दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अगेन दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्लियर कैन यू क्लियर। अगर आप किसी भी पंप के थ्रू, देखो दिस इज अ पंप, वो कहते हैं कि किसी भी पंप के थ्रू देयर इज अ पंप ओवर हियर, पिस्टन है, अगर यहाँ पर आप इसको ऑपोजिट साइड पे अगर आप इस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हो, इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर। तो अगर पानी का मूवमेंट कहाँ होना चाहिए, प्योर टू सी वाटर की तरफ होना चाहिए। तो थ्रू दिस पंप इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई अ प्रेशर ऑन द सोल्यूशन साइड, इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर। आप सोल्यूशन साइड पे एक ऑपोजिट प्रेशर एक्सर्ट करते हो, तो जब आप मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो वाटर का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, एंड उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग अ प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस विल अकर, तो पानी का मूवमेंट उल्टा बहेगा बेटा, वो सी वाटर से प्योर वाटर की तरफ जाएगा और उसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पर वाटर विल मूव फ्रॉम द सी वाटर टू द प्योर वाटर, और आपका जो लेफ्ट ओवर होगा एट द एंड यू विल गेट द सी सॉल्ट इन दिस। इज इट क्लियर कैन यू क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। एनी डाउट, किसी कुछ पूछना है तो पूछो, क्वेश्चन है तो पूछो। और ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बोला ना, आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है, इट इज़ अ मिनिमम प्रेशर विच कैन बी एक्सर्टेड ऑन द सोल्यूशन टाइप साइड सो एज टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर आपका आप कितना सोल्यूशन की साइड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हो, बिकॉज दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट, है ना, एंड दिस इज व्हाट वी कैन से दिस इज अ सोल्यूशन। क्लियर कैन यू क्लियर। तो आप कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हो कि पानी का मूवमेंट आपका स्टॉप हो जाए। इज इट क्लियर कैन यू क्लियर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसको ऐसे करके पाई से डिनोट करते हैं। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, व्हाट यू हैव टू से, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट,
इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है ना, उतना आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। दिस इज डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। इज इट क्लियर कि आपको हाउ मच मिनिमम प्रेशर यू कैन अप्लाई ऑन द सोल्यूशन साइड सो एज टू स्टॉप द मोमेंट। तो आपका जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा सोल्यूशन का, और सेकेंड थिंग इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? बिकॉज मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर जितना आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? तो उतना पार्टिकल ज़्यादा हिंड्रेंस कॉज करेंगे। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? बिकॉज आपको सोल्यूशन की साइड पे प्रेशर लगाना है एंड इट इज़ नॉट ईजी। अगर आपका सोल्यूशन में इतने पार्टिकल्स हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई अ प्रेशर ऑन दिस साइड, है ना। ऑपोजिट साइड का प्रेशर लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, तो आपका जो भी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो एक हिंड्रेंस कॉज करेंगे ना। अगर सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है तो वो एक हिंड्रेंस कॉज करेंगे ना। तो इसलिए बोलते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर में जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो यू हैव टू अप्लाई अ मोर प्रेशर सो एज टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ वाटर। और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोई पार्टिकल्स इधर उधर मूव करेंगे तो उनको भी कंट्रोल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और वेन एवर यू आर गोइंग टू कंबाइन दिस 1 and 2, तो what you will get, this pi is proportional to c into t. Is it clear? Can you clear? और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप रिमूव करते हो, इट इज इक्वल टू द r इंटू सी इंटू टी। इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? तो आप बोलोगे कि पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। आर इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इज इट क्लियर? क्या नहीं? और आपको पता है कि जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं, whenever we are talking about the concentration of the solution, it is number of the moles of the solute dissolved in the V amount of the solvent. Is it clear? Can it clear? Is it clear? तो जब हम concentration की जगह हम n upon V करते हैं into R into T कर सकते हैं प्रियांक, any doubt? Is it clear? और अगर आप V P इधर लेके आते हो तो पाई V is equal to nRT. Is it clear? Can it clear? This is called as the what we can say, और ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और आपको पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन। आपको मोलैरिटी का डेफिनेशन मालूम है कि नहीं? मोलैरिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन ना। आप कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर्स ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन व्हाट? प्रेजेंट इन 1 liter और 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन। इज इट क्लियर? कि नहीं क्लियर? तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलैरिटी पे डिपेंड करता है। आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इट डिपेंड्स अपॉन द मोलैरिटी। आप कहते हो ना मोलैरिटी पे है, और मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। और टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है, टेम्परेचर हैज़ अ इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो इसलिए अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का जो भी आप फाइंड आउट करोगे तो वो चेंज होगा। क्योंकि हमने आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया था। दीज आर ऑल्सो द 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो मोलैरिटी पे डिपेंड करती है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, और जब भी हम मोलैरिटी को एक्सप्रेस करते हो, इट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter और 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इफ इट इज डिपेंड्स अपॉन द मोलैरिटी मीन्स वॉल्यूम, तो टेम्परेचर हैज़ अफेक्ट ऑन द वॉल्यूम। क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ को गर्म करते हो तो वॉल्यूम तो चेंज होता ही होता है। इज इट क्लियर? तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर।